Students, can you tell me how many more chapters are to be completed with you all for your board point of view, students, as well as for your CET point of view? A semiconductor is remaining and dual nature of radiation. Students, is the audio and video fine with all of you all? Can you hear me? Okay, so Chirag, can you unmute yourself and be loud and clear and tell me karke now what exactly is left with respect to your CET point of view for TP Bhatia students? How many more topics in physics to be done with y'all? Yes, you can text. Doesn't matter. You can text. Okay, semiconductors and dual nature of matter. Okay, dual nature and of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. Have we started? Yeah, we have started, isn't it? Okay, students, fine. Now, students, when I told you about the the chapters previously about the MCQs, which I told you to do it from target and all, students, that will be possible when my lectures are going to be directly with you all at the center. Okay, in that time we'll be certainly discussing. Or when the portion gets over here, and when still our lectures are online going on, in that case, certainly we'll be discussing within the online sessions also. But first, I need to complete with your portion and syllabus, students. Okay. Okay, students. So let us move further, our students. Okay. Now, in the last lecture, students, I must have told you about the concept related to your dual nature of radiation, students, and that I made it very clear that light waves are electromagnetic waves, students. They are transverse in nature. Okay, at times they behave like waves, at times they behave like particles. That's why, students, when you try to learn with respect to light, we say that it gives you different phenomena such as ray optics or geometric optics, wave optics, and particle nature. Since ray optics में तुम पढ़ोगे reflection, refraction, at the same time you'll come across simultaneous reflection, refraction, वो वाला concept पढ़ते हैं. When you learn about wave optics, students, you'll be learning about with respect to your interference diffraction. Okay, that you'll be learning it. Further ahead in terms of particle nature, what we started off in the last lecture, students will be learning about photoelectric effect. So यहाँ पे students dual nature of light के अंदर, dual nature of radiation के अंदर, we have started off with particle nature of light, and the property which we are learning over here is photoelectric effect. That means your light or electromagnetic waves consist of uncharged particles, students, photons. And if you recollect, I told you very clearly that in photoelectric effect, students, it's the photon, that is the incident light. Students, your incident light or the incident photon, I write down in terms of EI. Students, your incident light or incident radiation of photon has a formula H into nu into I, students. What exactly the symbol nu stands for? Frequency. ये है स्टूडेंट्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो हमेशा हर्ट्ज में होगी, ये ध्यान में रखना. और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड टू बी इन ईवी. ये तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी है. Now, out of the total energy which is utilized or given to that particular electron, because when
when a photon strikes on an electron, students, I made it very clear that this photoelectric effect is an instantaneous process, students. Instantaneous process. Yani there is no time lag. जैसे जैसे तुम्हारा फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा स्टूडेंट्स. और ये कौन से एलिमेंट्स हमने लिया है? वी हैव टेकन ऑक्साइड्स of alkali metals. If you recollect this, I told you very clearly in the last lecture. So just a briefing of that. Oxides of alkali metal. So photon is used in order to strike the electron, and photon we consider as a light, students. Is made to strike the electron. This electron absorbs the energy in that case, and it's been emitting, we consider. So ये कौन सा है? ये है तुम्हारा visible light, students. ये है visible light. Starting from violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. I'm concerned with this visible part of light. और यहाँ पे जो तुम्हारा emitter है, ये जो तुम्हारा emitter है, वो है क्या? ये है oxide of alkali metal. उससे क्या होगा? जैसे photon strike होगा, एक photon strike होगा, एक electron बाहर आएगा. तो out of the total energy supplied, part of the energy is used to perform work, जिसको हम W0 लिख सकते हैं, P0 लिख सकते हैं, और ये है हमारा वर्क फंक्शन. What do you call this as? Work function we consider. ये है तुम्हारा वर्क फंक्शन. ये भी किसमें होगा? ये जो वर्क फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? So अगर ये h into nu है, तो ये h into nu 0 होगा स्टूडेंट्स. H again it's Planck's constant, and the value of Planck's constant I'm putting it over here, students. H is Planck's constant, students, and it's 6.63 into 10 to the power of minus 34 Joule second, students. ये है Planck's constant. ये जो work function है h nu 0, students, ये h nu 0 क्या है? This nu 0 stands for threshold frequency, students. This is threshold frequency measured in hertz. ये threshold frequency किसका है? ये है emitter का. Threshold frequency of emitter. Can you give me the threshold wavelength? Lambda 0 क्या हो जाएगा? Lambda 0 is threshold wavelength. ये ध्यान में रखना students. So students, whenever you're solving problems or you're trying to read the theory properly, students, so ये nu 0 lambda 0 is threshold frequency, threshold wavelength we consider measured in meter or in angstrom. लेकिन ये किसका है? Again for emitter. ये जो nu है, ये incident energy किसका? Incident frequency किसका? Photon का, students. Nu stands for incident frequency of photon we consider, and ये तुम्हारा nu हो जाएगा, which is striking away. तो ये तुम्हारा work function. This work function is also measured in what? EV. What does EV stands for? Electron volt. Friends, EV stands for electron volt. So out of the total energy imparted, part of the energy is used to perform work. What about the rest of the energy, students? The rest of the energy gets converted into what? Kinetic energy. That means energy
Very sorry, that was Gyaninder sir of the line. So I was speaking to him. Very sorry. Okay, students. Now listen carefully, students. ये है threshold frequency, ये है threshold wavelength of the emitter. Out of the total energy imparted, students, part of the energy is used to perform work. The rest of the energy gets converted to kinetic. Students, तो ये क्या है? Energy of emitted electrons. Students, emitted electrons. ये जो है energy of emitted electrons, ये कौन सी energy है? Students, this we call as kinetic energy. जिसको तुम शायद K लिख सकते हो या E K भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी. And that is given by what formula? Half m v max square. यानी ये है maximum kinetic energy with the electrons are coming out, students. ये भी किसमें मेजर कर सकते हो, students? अगर तुम्हारा ये यूनिट EV में है, इंसिडेंट एनर्जी तुम्हारा EV में है, तो kinetic energy also you can write down in terms of EV. No problem in that case. You can get your answer. क्योंकि जब भी problem solve करो, students try to keep the entire system in one unit itself only. That's in EV. Secondly, can I convert this EV into joule also? Why not? So 1 electron volt. Anybody can tell me 1 electron volt is equal to how many joule, students? कोई बता सकता है? हाँ students, 1 electron volt is equal to how many joule? Unit. What is the order? Hitansh, what is the order? Absolutely correct, students. Okay, so what exactly 1 electron volt, students? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19. Yes, Shirai, absolutely correct. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule, students. This is what it is. Hey, students, ये concept क्या बताता है? This is actually giving you a mathematical relation for Einstein's photoelectric effect, जो हमने last lecture में I just briefed up for the students. तो ये जो equation है, ये है क्या students? That is, we take it as what? Out of the total energy imparted, students, यानी ये हो जाएगा incident energy. A part of energy is used to perform work function, plus the rest of it gets converted to kinetic energy. Agreed? अगर suppose ये जो work function है किसका है? It's for the metal emitter, students. If the work function of the metal emitter is minimum, students, if the work done by the electrons to overcome the electrostatic force is minimum, students, ध्यान से सुनना, the electrons will come out with maximum kinetic energy. And students, whenever you speak about photoelectric effect should be preferred for an emitter having high work function or low work function. So your answer should be always low work function, students. हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स so always try to go for what kind of emitter? Emitter which shows low work function, students. I need to go for those emitters which gives you minimum work function, so that the electrons which are coming out, they should come out with maximum kinetic energy. Yes, is there any query? हितांश कुछ पूछना है? No, sir. Okay. So now what exactly your expression will be? Can you give me the mathematical relation now in this case? Incident energy is equal to work function plus kinetic energy. So how do you go about with this?
तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इज h nu I. Work function will be equal to what? H nu 0 plus kinetic energy maximum half m p max. ये तुम्हारा फॉर्मूला और ये कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड एज योर formula for Einstein's photoelectric effect. So when somebody asks you students what exactly Einstein's photoelectric effect, students, then your formula is h nu I is equal to h nu 0 plus half m v max square, students, and that's the maximum velocity with which this electron is coming out of the concept. अभी यहाँ पे photoelectric effect के लिए students, what did I tell you? What are the important conditions required? Can anybody tell me what are the important conditions required for photoelectric effect? तो बता सकते हैं students? Yes, Chirag, Hitansh, anybody? Conditions required for photoelectric effect. Yes, Manasvi, Nupur, Himanshu, Malak, Joshi, Nedip, Sir, are Chirag. you revising this chapter? No, my dear, I'm not revising. I'm just trying to give you the formula. What are the conditions required? But sir, I think this is done. The So photoelectric I effect. want to know the answer for it. I just want to know the answer. Sure. Can you tell me the answer, Hitansh? Yes, sir. What is it? Means frequency should be greater than minimum Greater frequency, than? threshold frequency. Absolutely correct. Dusra? There will be no time lag between photo current. तो क्या Instantaneously बोल they will. नहीं conditions में क्या बोला? Incident frequency is greater than threshold. दूसरा? There will be no time lag. That is not condition. That is not condition. Conditions for photoelectric effect. अगर तुम्हारा incident frequency is greater than threshold, what about the incident wavelength should be? Huh? Frequency of incident rays should be very high. Of course, Chirag has given the answer. Students, Chirag has given the answer that the frequency of incident photon should be greater than the threshold. That's absolutely clear. Students, agar frequency is greater, what about the wavelength of incident? It should be less than the threshold wavelength. ये ध्यान में रखना. Second condition, that the work function of the metal emitter should be minimum. I want to go for an emitter which should have a low work function in that case. So that in this case, my emission of electrons will be maximum, students. So that's what we consider. So students, when I speak about for factors on which your photoelectric effect takes place, students, then what are the factors we consider, students? The first factor is your incident frequency, students. Your incident frequency should be greater than threshold frequency. मुझे बताओ हिमांशु, can you tell me about it, हिमांशु? अगर मैंने पूछा, suppose, sorry, हितांश, not हिमांशु, हितांश, अगर मैंने बोला suppose incident frequency is equal to threshold होता तो क्या होता? बताओ. What happens if the incident frequency is equal to threshold? क्या होगा? हितांश? Sir, the electron will not emit. Electrons will be emitted? No, sir. तो क्या होगा? Electrons कौन सा motion perform करेंगे? A vibration motion. Yes, that means they'll oscillate, यानी SHM perform करेंगे. कि जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, what about the atom becomes positively charged? तो वापस वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो अगर तुम्हारा nu I is equal to nu 0 तो photoelectric effect just takes place, लेकिन हो नहीं रहा है. Photoelectric effect का better effect कभी होगा when nu I is greater than nu 0. Therefore, what about the corresponding incident wavelength? Should be less than the threshold wavelength. What about the work function of the metal emitter? Should be
minimum we consider. Are you getting it? That's how we consider. At the same time, अगर तुम emitter लोगोगे, अगर तुम collector लेते हो students, the collector should be of a suitable potential. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैंने वो भी एक फैक्टर बोला था. कलेक्टर का मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बाहर निकलते हो किस तरफ जा रहे हैं? कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो तो मैंने क्लियरली बोला था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, नो टाइम लैग है. तो collector should be of a suitable potential. यानी it also depends on to the potential of the collector. Students, ये ध्यान में रखना. It also depends on the potential of the collector. If I change the potential of collector, students, my photoelectric effect, that means photocurrent will also change. क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? Students, is that clear to all of you all? Yes, sir. Okay. Now we move further ahead with respect to a graphical way of understanding, students. Okay. Let us understand the graphical way of understanding this. So, Hum, are you there? Okay, students, now we go for graphical way of understanding. अभी ये जो graphical way of understanding में students को keep in mind एक और factor include होता है, and that is what we call as intensity. So अगर किसी ने पूछा students what are the factors on which photoelectric effect depends? So students, now you can put forward the first one we call as intensity. Intensity of incident radiation, yani incident photon. Second, it depends on to the frequency of incident photon. अगर मैंने frequency बोला है तो correspondingly we can go for incident wavelength के साथ में भी. Then it depends on to the work function. And last factor is potential of collector. फ्रेंड्स अभी मैंने ये क्यों लिखा है, रीजन क्या है? क्योंकि जो भी ग्राफ्स हम अभी हम पढ़ेंगे ना सारे इसी के ऊपर है स्टूडेंट्स, इसी के ऊपर सारे ग्राफ्स है. यानी तुम्हें ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है. When I'm speaking about first, student, when I'm speaking about first factor, listen carefully. जब भी हम first factor के बारे में बात करेंगे तो हम ग्राफ बनाएंगे उसका. तो जब भी मैं ग्राफ बनाता हूं तो बाकी दो तीन फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे. अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है स्टूडेंट्स? ये किसका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो सारे केस में अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? इट्स फोटो करंट. स्टूडेंट्स ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसके बीच में है? ये है फोटो. एग्रीड? यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कंसिडर. जो फोटो करंट है आए
इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स में आई कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ, बस आई डैश, और करंट को मैं आई लिखता हूँ। यानी ग्राफ में फोटो करंट होगा और वो कौन सा एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। यानी ये कौन सा मेरा टर्म हुआ सर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये ध्यान में रखना, ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सारे जो है स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस पे होंगे, ये ध्यान में रखना। ये जितने भी सारे हैं वो सारे एक्स एक्सिस पे होंगे। ये कौन से टर्म्स हैं, ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। यानी अभी हम जो ग्राफ बात करेंगे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में बात करेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes. Now when I go for the first graph, to get the first graph students, let us understand the first graph. First graph is what? If I want to go for the first graph, students, we are going for intensity. Intensity of incident radiation and photocurrent. That means I want to go for graphical representation of photocurrent versus intensity of incident light. ये देखो I versus I dash. यानी उसका मतलब स्टूडेंट्स ये y एक्सिस पे होगा और ये x एक्सिस पे होगा। तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा x एक्सिस और ये y एक्सिस के ऊपर मैं करूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ बाकी क्या रहेगा, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जब भी तुम फोटो करंट के बारे में बात करते हो और यहाँ पे तुम इंटेंसिटी के बारे में बात करोगे तो सारे दूसरे फैक्टर्स क्या होंगे, सारे दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। ये दूसरे फैक्टर्स कौन से स्टूडेंट्स, जो दूसरे फैक्टर्स तुम कांस्टेंट बताओ वो क्या है, वो है क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ सर वो होगा कांस्टेंट। फिर क्या है, वर्क फंक्शन, हाँ सर वो होगा कांस्टेंट। पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर, सर वो होगा कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट फॉर सम टाइम। तुम अगर एक ग्राफ समझ लोगे ना स्टूडेंट्स, बाकी सारे ग्राफ ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू क्रैक इट स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान से सुनना, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कंसीडर स्टूडेंट्स। So on y-axis I'm taking photoelectric current, और on x-axis I'm taking intensity. सबसे पहले स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का मतलब क्या, how exactly intensity is defined as? तो बता सकता स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? Anybody can define intensity students? How do you define intensity? The intensity का definition students क्या है, energy incident perpendicularly per unit area per unit time. Students ये है intensity का फॉर्मूला। And this intensity students is always in watt, name after James Watt. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्चुअल वे ऑफ तुम अंडरस्टैंड करते हो तो उसके लिए तुम्हें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा डायग्राम स्टूडेंट्स? डायग्राम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाया था। I had drawn a simple kind of a discharge tube. Students, एक simple type of discharge tube मैंने बनाया था, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो। Then I had taken a window, glass window, और फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक तरफ डाला था एमिटर और दूसरी तरफ मैंने डाला था कलेक्टर। ये है एमिटर और ये है कलेक्टर। प्लीज स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू लॉन्ग बिफोर स्टूडेंट्स। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया था सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से। सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने एक रियोस्टेट ले लिया स्टूडेंट, मैंने एक रियोस्टेट लिया, ये तुम्हारा की होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज योर ईएमएफ, दिस इज योर की, दिस इज योर रियोस्टेट। और इन दोनों के बीच में मैंने एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डाल दिया स्टूडेंट्स। Okay. For example, if I say I'm taking a current measuring instrument, or I take a galvanometer, चलो मैंने galvanometer ले लिया students, 1 and 0. Everybody please concentrate over here. जब भी ये ग्राफ को समझना है तो डायग्राम को समझना जरूरी है। अभी ध्यान से सुनना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
एंड स्टूडेंट्स फोटो करंट का मतलब क्या? फोटो करंट का मतलब क्या? सर ये जो एमिटर है, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये जो एमिटर है क्या? सर इट्स एन ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। यानी व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस एमिटर? सर द वर्क फंक्शन इज मिनिमम और कांस्टेंट है। उसका मतलब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सोचो अगर मैंने तुम्हें 3 एलिमेंट्स दिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। स्टूडेंट्स तुमने क्या किया? ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम ले लिया, ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम ले लिया, और तुमने उसको यहाँ पे रखा हुआ और वो कांस्टेंट रखा है। स्टूडेंट कभी तुम चेंज नहीं कर रहे हो, है उसका वर्क फंक्शन मिनिमम ही है, लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैं उसको चेंज नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। यानी ये जो मेरा एमिटर है वो किसको कनेक्टेड है? सर वो कनेक्टेड है टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, लेकिन उसके ऊपर मैंने कोटिंग किसका किया है? ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। क्या मैं एवरी रीडिंग के टाइम पे उसको चेंज कर रहा हूँ? नहीं चेंज कर रहा हूँ। यानी इज द वर्क फंक्शन मिनिमम? हाँ सर मिनिमम है। क्या उसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट? हाँ सर वो कांस्टेंट है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रेंड्स इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, so work function is minimum. Okay, now what I have done, I have taken this particular glass window students, और मैंने क्या किया है? मैंने मैंने दूसरा फैक्टर, potential of the collector, potential of the collector, and you look at the collector students, ये negative terminal है और ये positive. I'm keeping this collector at positive potential students. मैंने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पे, सपोज अगर मैं इंसर्ट कर दूं की तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है स्टूडेंट्स। मैं इसका पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसका मतलब मैंने क्या किया मालूम है स्टूडेंट्स? ये जो रियोस्टेट है ना स्टूडेंट्स, ये जो रियोस्टेट है, मैंने रियोस्टेट को, जॉकी को एक पॉइंट के ऊपर टच करके रखा हुआ है और इसको मैं आगे पीछे मूव नहीं कर रहा हूँ। Students, I'm not changing the resistance. If I'm not changing the resistance, the current, the potential difference across these two remains constant. That means my collector is at what potential? The potential of the collector is positive and kept constant. क्या ये क्लियर हुआ? Of course, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाले हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो किस तरफ जाने वाला है? पॉजिटिव प्लेट। यानी ये पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन उसका तुमने एक पोटेंशियल लिया हुआ है और उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, ना ही बढ़ा रहे हो ना ही कम कर रहे हो। ये देखो दूसरे फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अभी तीसरा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तीसरा फैक्टर देखो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? सर यहाँ से जो फोटोन आप स्ट्राइक करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा एमिटर कौन सा है। तो तुम बोलोगे सर मेरा एमिटर तो ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल है। अरे तो हमें हमें विजिबल लाइट लेनी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट ने विजिबल लाइट ली है, दैट इज ये टेकन है येलो लाइट। और येलो लाइट का इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सो येलो लाइट का इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज सर्टेनली ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल एमिटर। यानी तुमने थ्रू आउट स्टूडेंट्स, तुमने फॉर एग्जांपल नॉट येलो, आई एम टेकिंग ब्लू लाइट स्टूडेंट्स। यानी देखो ये जो मेरा ब्लू लाइट है, ये देखो ये मेरा ब्लू लाइट फ्रॉम ब्लू सोर्स, फ्रॉम सोर्स, ये कौन सा है? ब्लू लाइट स्टूडेंट्स ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ, वो स्ट्राइक हो रहा है एमिटर को। और यानी मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एंड इट्स केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट माय एक्सपेरिमेंट। अभी देखोगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स स्टूडेंट्स? लिसन केयरफुली। फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर एंड इंटेंसिटी। चार में से कितने को मैंने कांस्टेंट रखा है? तो मेरे सर आपने 3 को कांस्टेंट रखा है, तो कैन आई स्पीक अबाउट द फोर्थ वन? ये है तुम्हारा ग्राफ। स्टूडेंट जब भी तुम आगे चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें ग्राफ्स को समझना है। तो अभी तुम्हारे को तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अभी दूसरा ग्राफ जब भी सर बताएंगे तो वो फोटो करंट के हिसाब से, शायद फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताएंगे, लेकिन वहां पे मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा? वहां पे मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा? तो तुम बोलोगे सर वर्क फंक्शन को कांस्टेंट रखना जरूरी है, पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर को कांस्टेंट रखोगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे।
समझ में आ रहा है? जब भी मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बाकी तीन को मैं कांस्टेंट रखूंगा। जब भी मैं वर्क फंक्शन के बारे में बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल इसको कांस्टेंट रखूंगा। जब भी मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखूंगा। यानी स्टूडेंट्स चार में से अगर तीन को मैंने कांस्टेंट रखा, आई कैन प्ले अराउंड ऑफ फोटो कलर विद रिस्पेक्ट टू अदर। क्या ये क्लियर हुआ ग्राफ के बारे में? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग? Students, all the students who are into the group, it's not only one, two. I'm not teaching only one, two students. Please, अगर नहीं समझ में आया तो please do speak it out, reply, unmute yourself. Shriraj, I don't know whether you have been attending lectures. Sharad, Sanket, Prachi, Nilesh Patel, Kharsh, Karen has texted. Hitansh, what about you? Harsh, Chirag says yes. Prajapati, there's no response from Nadir. No I response think from Manshu, Manasvi, no response from Nupur. Shaili, she's absent. No, she's there, Sally, but she doesn't respond at all. Sir, I am there in lecture. You are there, but you are not responding. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Karen, समझ में आ रहा है? You said it, no, sir. हाँ, Karen, समझ में आ रहा है? Karen, are you understanding? Karen? No, sir. No, my dear, I haven't done intensity and potential. I haven't done intensity and potential, my dear. हितांश, शांति, आराम से. Okay, don't worry. अच्छा हितांश, मुझे बता इंटेंसिटी को कैसे चेंज करेगा? चल, ये किया है ना तेरे हिसाब से, बता. हितांश, to you. yes sir, क्या intensity था? हितांश, can you tell me how can you change the intensity? कैसे इंटेंसिटी को चेंज करोगे? Intensity is directly proportional to the current. Directly proportional to? The current. नहीं, अरे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो तेरे को टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है, लेकिन तू इंटेंसिटी चेंज करेगा तो करंट चेंज होगा ना. तो मैंने ये पूछा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे चेंज करेगा? ये तेरा सेटअप है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. तेरे को इंटेंसिटी पहले क्या करना है? इंटेंसिटी इन द फर्स्ट केस इज 0. फिर जैसे जैसे तू इंटेंसिटी बढ़ाएगा, तो मेरा क्वेश्चन है उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएगा? सर वेवलेंथ को कम कर दूंगा. अरे माय डियर, अगर तू वेवलेंथ को कम करता है तो उसका मतलब तू फ्रीक्वेंसी के ऊपर जा रहा है. फ्रीक्वेंसी एक अलग फैक्टर हुआ, इंटेंसिटी एक अलग फैक्टर है. इंटेंसिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है. इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग टर्म हो गए. सर वोल्ट बढ़ा दूंगा, करंट इंक्रीज कर दूंगा. तो पोटेंशियल के साथ में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इंटेंसिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा. तूने बोला ना किया है, यस सर. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सर शायद से मैंने ये बताया था इतना, और ये बताया मैंने, इंटेंसिटी स्टूडेंट्स is inversely proportional to square of distance. हितांश, ध्यान से सुन, वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको समझ के ले लो. ऐसे नहीं कि कर लिया इसलिए आगे भागो. स्टूडेंट्स ये समझ कर ले लो कि मेरा ये सेटअप है, मेरा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैंने एमिटर को कांस्टेंट रखा हुआ है, कलेक्टर को कांस्टेंट पोटेंशियल रखा हुआ है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मेरी ब्लू लाइट है जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. कमिंग टू इट ओनली, आई एम एक्सप्लेनिंग ग्राफ ओनली. हेलो, हु इज दिस? मैं ग्राफ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ करण. मैं ग्राफ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ग्राफ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ आई नीड टू चेंज इंटेंसिटी. सो हाउ डू आई चेंज इंटेंसिटी? In the first case, students, keep the source of blue light far away. Students, अगर distance ज्यादा होगा तो कहना से intensity कम होगी, यानी तुम्हारा ये वैल्यू आएगी 0. जैसे जैसे तुम सोर्स को विंडो की तरफ लेके जाओगे, जैसे जैसे सोर्स का डिस्टेंस कम होते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, कहना से इंटेंसिटी बढ़ेगी. और इंटेंसिटी का मतलब क्या है? What is the definition of intensity? What is the definition of intensity? Energy of incident photon striking the emitter per unit area per unit time also will go on increasing.
समझ में आ रहा है? तो अगर किसी ने पूछा हाउ कैन यू चेंज इंटेंसिटी, तो इनका आंसर को क्या बोलना है? सर चेंज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द विंडो, ग्लास विंडो। देखो दो तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट, दो तरीके से कर सकते हो। शायद तुम्हारे घर में एक शैंडलर होगा, या रेगुलेटर तुम पकड़ लो, फैन रेगुलेटर पकड़ लो, या शैंडलर का रेगुलेटर पकड़ लो। जो तुम रेगुलेटर 1 2 3 4 पे करते हो तो स्पीड बढ़ता है फैन का, या ब्राइटनेस बढ़ती है, वो इंटेंसिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे तुम रियोस्टैट के हिसाब से नहीं करोगे, यहाँ पे तुम डिस्टेंस के हिसाब से। ये जो सोर्स है उसका रेगुलेटर, इसका तुम सोर्स तुम चेंज करो। यानी यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम इसका रेगुलेटर घुमाओगे तो तुम्हारा ब्राइटनेस बढ़ेगा, ब्राइटनेस कम होगा, दैट इज व्हाट इट इज। या तो तुम डिस्टेंस चेंज करो। अगर मैंने डिस्टेंस कम कर दिया इंटेंसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ा दिया इंटेंसिटी कम होगी। हितांश क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. करण, व्हाट अबाउट यू करण? तेरा कंफ्यूजन Yes, sir. क्लियर हुआ? Yeah. But ओके, अभी भी एक अभी देखो doubt ध्यान से है। देखना। मैंने सर सबसे पहले, हाँ बोलो। सर सपोज हम लोग ये सोर्स को एक बल्ब की तरह कंसिडर कर रहे हैं, बट हम्म, ओपनिंग तो उतना ही है, तो जितना भी मींस क्लोजली लेके आओ सोर्स को, तो भी रेज ऑफ लाइट जितनी इंसिडेंस मींस अंदर जाने वाली है, जो बाइसेक करने वाली है, उतनी रेस बाइसेक करेगी। नहीं मेरे भाई, एक बल्ब को तू दूर रख और एक बल्ब को नजदीक रख, चलना। बट सर तेरे बुक ओपनिंग है तो उतनी जहाँ है से, ना। नहीं तेरी बुक है, तेरी बुक है, अभी तेरे स्टडी टेबल पे तेरी बुक होगी और ऊपर से लाइट आ रही है। हाँ, चलो तो लाइट को तो नीचे नहीं लेके आ सकता क्योंकि वो सीलिंग पे फिक्स है, तो बुक को नजदीक लेके जाना। तो क्या ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा पेज के ऊपर? यस बढ़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स सर। इंटेंसिटी वेव में तुमने पढ़ा होगा, वेव मोशन में, साउंड वेव्स में भी पढ़ा होगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये सारे फैक्टर्स तुम लोग ने पढ़े हुए हैं साउंड वेव्स में, उसमें एक फैक्टर ये आता है। ये लाइट में भी एप्लीकेबल होता है। तो अगर सपोज कोई सोर्स ऑफ लाइट तुम्हारे बुक के ऊपर परपेंडिकुलरली आता होगा तो वो ब्राइटनेस ज्यादा देगा। वही अगर सपोज तुम्हारी ट्यूबलाइट दूर है और वहां से स्लांट रेज आ रहे हैं, तो क्या वो बुक को ज्यादा ग्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर वही लाइट एग्जैक्टली सर पे होगी यानी बुक के ऊपर होगी तो एनर्जी परपेंडिकुलरली है, तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ऊपर से अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट नजदीक होगा तो और ब्राइटनेस बढ़ेगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो हाउ डू वी चेंज द इंटेंसिटी? अगर किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पूछा ना स्टूडेंट, तो क्या बोलना है? हाउ कैन वी चेंज द इंटेंसिटी? बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द एमिटर। अगर डिस्टेंस कम होगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं स्टूडेंट देखो, तो अगर मैंने सोर्स को नजदीक लिया तो कहने से मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, more electrons will come out. These electrons are negatively charged. What exactly is front of it is positively charged. Which electrons can reach? Those electrons with maximum kinetic energy will reach. जैसे वो यहाँ पे reach होंगे क्या होगा? Circuit complete हो जाएगा. Will there be any deflection? Yes, there will be a deflection. That shows there is current. Yes, there is some current. वो current कौन सा होगा? ये होगा photo current. यानी photo current will be considered to be on y-axis. Does current depends on intensity? Yes. What kind of a graph I'm going to get it? A straight line graph. ये है तुम्हारा straight line. यानी अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन जब हम इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे 3 फैक्टर्स कांस्टेंट रखना जरूरी है। इसके साथ में तुम्हें फिजिट नहीं करना है, तुम्हें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, यानी ब्लू लाइट ही फेंकनी है थ्रू आउट। अभी सपोज कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को दूसरा स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो ब्लू लाइट नहीं ले रहा है, वो येलो ले रहा है, तो उसके हिसाब से उसको फोटो करंट मिलेगा। लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ही कीप द लाइट कांस्टेंट, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ही हैज टेकन अ सूटेबल emitter. He is keeping the emitter constant throughout. He's not changing the emitter. He's keeping the potential of the connector positive and he's keeping it constant, not changing it. What is he changing? He's changing only intensity. How can we change the intensity? Changing the distance. अगर डिस्टेंस नजदीक रहेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ागा तो इंटेंसिटी कम होगा। इज दिस क्लियर? So is it clear to all of you all?
करण, what about you, करण? समझ में आ रहा है करण? Yes, sir. Okay, Hitansh, what about you, Hitansh? Okay, now we go for next factor. देखो second factor के ऊपर जा रहा है. Second factor के मैंने एक लिए कहा कि स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ. प्लीज स्टूडेंट्स, जब भी हर एक फैक्टर्स को समझना हो ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम एंड द ग्राफ. अभी हमारा सेकंड फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? सेकंड फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है? The second factor I'll consider will be with respect to my incident frequency. Students, I'll go for incident frequency. Listen carefully now. Second factor, I'm going for incident frequency. Listen carefully, students, okay? That means on y-axis, what am I going to go for? What am I going to go for in this case? Photocurrent. Agreed? I can go for photocurrent. And on x-axis, I can go for intensity. Sorry, frequency. कौन सा frequency? Incident. X-axis. Photocurrent कौन सा axis पे? Y-axis पे. Please students ध्यान से सुनना. मुझे ये बताओ students, does photocurrent depends on the frequency? हाँ students? या photocurrent precisely depends on the intensity? ये बताओ. Anybody? Does Yes, sir. photocurrent depends on the frequency? हाँ सर, डिपेंड होता है. Depend होगा. हम्म. Frequency का मतलब क्या हुआ? अभी ध्यान से सुनना. Everybody listen carefully. ये मेरा emitter है. Okay? इसके ऊपर मैंने ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल डाला हुआ है. ध्यान से सुनना. 3 स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक 3 स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे एक्सपेरिमेंट. पहले स्टूडेंट ने फोटोन लिया, दूसरे ने फोटोन लिया, तीसरे ने फोटोन लिया. स्टूडेंट्स, सारे केस में मैंने इंटेंसिटी सेम रखा, यानी सबका सोर्स का डिस्टेंस सेम रखा. लेकिन पहले वाले ने क्या किया मालूम है? वायलेट लाइट लिया. दूसरे ने येलो लिया और तीसरे ने रेड लिया. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किसका वेवलेंथ शॉर्टर होगा? वायलेट का, है ना? शॉर्टर देन येलो, शॉर्टर देन रेड. व्हाट अबाउट करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट? ग्रेटर as compared to yellow, as compared to red. स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? यानी ये तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है. पहले स्टूडेंट ने वायलेट लाइट ली और उसने वो एमिटर पे स्ट्राइक की. दूसरे स्टूडेंट ने येलो लाइट ली और वो उसने एमिटर पे स्ट्राइक की. तीसरे स्टूडेंट ने रेड लाइट ली और एमिटर पे स्ट्राइक की. क्या तीनों केस में इलेक्ट्रॉन्स विल अब्सॉर्ब द एनर्जी एंड दे विल कम आउट? तुम बोलोगे हाँ सर, दे विल कम आउट. Very good, Hitansh. Very good, Hitansh. See, Hitansh just put in a, I don't know about it. Hitansh, ये तेरे को direct message मेरे को नहीं देना था. You should have made it possible to read for everyone. He is putting the photocurrent and hence the number of electrons depends on the intensity but not on frequency of incident radiation as long as incident frequency was larger than the threshold frequency and the potential of the anode was higher than that of the cathode. Since यानी ये बंदे ने ना हितांश ने चैप्टर किया हुआ आगे, इसलिए बोल रहा सब कुछ हो गया.
Students, he has made a very good statement. अभी ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वायलेट के हिसाब से ली मैंने पहले केस में। तो स्टूडेंट्स इससे होगा क्या मालूम है, उससे सिर्फ ये होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है will come out easily, will come out easily and will reach to the collector. लेकिन स्टूडेंट जब हम फोटो करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके ऊपर डिपेंड है स्टूडेंट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड है? it depends on to the number of electrons coming out from the surface of the emitter per unit time. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेवर ऑन फ्रीक्वेंसी. Frequency is simply absorption of energy and emission of electrons due to absorption of energy. It doesn't support number of electrons. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसी से होगा क्या, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी फोटोन का और वो बाहर आ जाएगा. उससे क्या तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना बढ़ता है? नहीं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो डिपेंड होता है इंटेंसिटी के ऊपर स्टूडेंट्स, एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. तभी जाके अगर किसी ने तुम्हें पूछा डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नो, डज नॉट डिपेंड. इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. Photoelectric current does not depends on frequency, but does it depend on intensity? Yes, it depends on intensity. करण तू है ना, अनम्यूट करके यार तू अपने आप को. Okay. Students, so what exactly consider photoelectric effect simply depends on intensity, it's independent of frequency. करण नहीं डियर, ऐसे मत कर करण, ऐसे मत कर. तू इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसे क्या कर रहा है करण? ये तेरा ही फोटो है करण. हाँ करण, तू कितना स्मार्ट लग रहा है करण, तू कितना स्मार्ट लग रहा है. ऐसे मत कर. तो भी ध्यान दे, बैकग्राउंड में तेरा बहुत आवाज है. कॉलेज में सब प्रैक्टिकल का है मीटिंग. ओके. ईवीएस का प्रैक्टिकल्स है. कौन से कॉलेज से तू? टीबी वाटिया. टीबी वाटिया. अंधेरी. हाँ, अंधेरी विद्यानिधि. अच्छा, यू आर फ्रॉम अंधेरी विद्यानिधि. ओके, फाइन फाइन फाइन, डजंट मैटर. वो तो पोस्ट कर दूंगा मैं. रिकॉर्डिंग आज पोस्ट हो जाएगा तुम्हारा यूट्यूब के ऊपर. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, फिर अभी ध्यान से दो प्लीज, अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज इट डिपेंड्स ऑन टू फ्रीक्वेंसी? नहीं, कभी नहीं डिपेंड होगा स्टूडेंट्स. इट डिपेंड्स ऑन टू इंटेंसिटी. यानी अगर किसी ने पूछा कैन यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, नॉट एट ऑल. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. और मैंने क्लियरली बोला है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, और नंबर ऑफ फोटोन्स का स्ट्राइक कभी बढ़ेगा जब भी तुम्हारा इंटेंसिटी चेंज होगा. यानी तुम डिस्टेंस आगे पीछे करोगे तो, अगर पीछे रखोगे तो लेस फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग, नजदीक रखोगे तो मोर फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग, मोर फोटोन स्ट्राइकिंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट. तो करंट डिपेंड्स ऑन दैट. फ्रीक्वेंसी से तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर नहीं आ सकेंगे स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसी में हो क्या रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, और वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ओवरकम करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करेंगे, एंड देन विल कम आउट. उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोपोर्शन नहीं बढ़ता. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोपोर्शन बढ़ाता कौन है? इंटेंसिटी एंड नॉट फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट्स, डू कीप इन माइंड दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज फोटो करंट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Rest of the students, Hitansh has already got it. Chirag, what about you? Nadeep, Saili, Nupur, the rest of the students who are in the lecture, Manasvi, Prajapati, Harsh, Kush, Nilesh. Hope you all are getting it.
Okay. Now you have next part of the relation. Students, अभी जो तुम्हारा है वो photo current with respect to क्या है? With potential. Students, photo current with respect to potential of the collector. अभी हम potential of the collector के हिसाब से जाएंगे students. ध्यान से सुनना. Okay? ये बहुत important है. Many students don't get this. So now we go for graphical way of representation of photocurrent. With respect to potential of collector V. And we need to understand this. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे students? Graphical way को करना है तो this becomes your y-axis. This is your x-axis. Okay, this is 0. On x-axis, what am I taking, students? On x-axis, I'm taking as what? Potential of the collector. Okay, and on y-axis, I'm taking photoelectric current. Photocurrent. इसको हम क्या बोलूँगा मैं? Photocurrent. These students, इसको intensity मत समझना. Intensity is I dash. लेकिन जब भी मैं photocurrent और potential of the collector करता हूँ, students, can you tell me what factors should I keep constant over here? किसको constant रखूँगा मैं? Anybody can tell me what are the other factors I have to keep constant? Yes, can you tell me that? कौन से factors को constant रखूँगा मैं? Hitansh, can you tell me? Intensity and Photocurrent with potential of the collector. So what should I keep constant? intensity and frequency. Potential of collector के बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes, absolutely correct, Chirag. तो बाकी सारे factors को रखो ना constant. Intensity, work function of the emitter we consider, and incident frequency greater than threshold. ये हम constant रखेंगे. बाकी तीनों factors constant रखेंगे. लेकिन यहाँ पे 3 students perform कर रहे हैं experiment. Students, ध्यान से सुनना. 3 students perform कर रहे हैं experiment. पहला केस में किसी ने फ्रीक्वेंसी 1 लिया है, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी 2 लिया है, तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी 3 लिया है. और ये फ्रीक्वेंसी 1 is less than frequency 2 is less than frequency, लेकिन all 3 are greater than the threshold frequency of metal emitter. यानी स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट 3 दफे हो रही है. Everybody please listen carefully what am I trying to put forward. ये जो एक्सपेरिमेंट हो रही है वो 3 दफे हो रही है. 3 दफे हो रही है, 3 अलग स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन तीनों केस में स्टूडेंट्स जब भी तुम डायग्राम के हिसाब से जाओगे स्टूडेंट्स, तीनों केस में जब भी तुम डायग्राम के हिसाब से जाओगे तो वहां पे तुम्हारा सोर्स का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. दूसरी बात, तुम्हारा जो एमिटर है वो एमिटर भी कांस्टेंट है विद सेम वर्क फंक्शन. यानी द मेटल एमिटर इज एग्जैक्टली ऑफ सेम मेटल थ्रू आउट. 3 स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, तीनों ने सेम मेटल लिया, या तो लिथियम लिया, या सोडियम लिया, पोटेशियम लिया. सामने जो कलेक्टर है स्टूडेंट्स उसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव रखते हुए सेम पोटेंशियल पे रखा हुआ है. यानी यू आर नॉट फिजिटिंग विद द रियोस्टेट एट ऑल. Positive, negative, E, K and rheostat. Agree students? मैंने इसको मैंने पोटेंशियल पॉजिटिव रखा हुआ है, लेकिन सर्किट ओपन है. यहाँ पे इन दोनों के पीछे मैंने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर बिठा दिया. करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट 1 and 0 students. Galvanometer with 1 and 0. So what are the factors which I have to keep constant? So we are keeping intensity constant, not changing the distance.
Agree, that's the first factor. Secondly, sir, you are not changing the work function of the emitter, यानी तुम मेटल एमिटर के ऊपर जो वो एलिमेंट है उसको तुम नहीं निकाल रहे हो, वही रख रहे हो तीनों स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले वाले स्टूडेंट ने इफ आई गो फॉर विबग्योर, सबसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने ऑरेंज लाइट यूज किया है. प्लीज लिसन केयरफुली. दूसरे ने ग्रीन लाइट यूज किया है, तीसरे ने वायलेट लाइट यूज किया है. तो देखो स्टूडेंट्स, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा? वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा. ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट. बट ये तीनों फ्रीक्वेंसी इज इट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड ऑफ द मेटल? यस. क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ योर regarding explanation for your graphical representation? अभी हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले वाले स्टूडेंट का हम लोग फ्रीक्वेंसी ले. यानी देखो सेटअप ये है स्टूडेंट, सेटअप ये है. तुम क्या करो, ऐसा कोई सेटअप ले लो जहां पे तुमने की को निकाल दिया है. एवरीबॉडी से की को निकाल दिया है. सोचो कि तुमने लिथियम लिया, ऑक्साइड ऑफ लिथियम लिया, उसको कनेक्ट कर दिया है, की को निकाल दिया है. यानी देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. स्टूडेंट्स, देयर इज नो पोटेंशियल, की को निकाल दिया है स्टूडेंट्स. देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर. मैंने सोर्स किसका रखा है? ऑरेंज लाइट का रखा है, तो उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है. जैसे मैंने ग्लास विंडो खोली स्टूडेंट्स, ऑरेंज लाइट आएगी, ऑरेंज लाइट इसको स्ट्राइक करेगी, यानी माय इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है. इज इट ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड? यस. क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? सर होगा. इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. कौन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे स्टूडेंट? जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो ही बाहर आ सकेंगे स्टूडेंट्स. जिनकी एनर्जी कम होगी वो बाहर नहीं आएंगे. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी वो यहाँ तक पहुंचेंगे. जैसे वो यहाँ तक पहुंचेंगे सर्किट कंप्लीट होगा. भले तुम्हारा की ओपन है, हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा की ओपन है, फिर भी क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा? हाँ सर, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. किसके लिए? ऑरेंज लाइट के लिए. ये तुम्हारा 0 है, ये ऑरेंज लाइट के लिए. यानी स्टूडेंट्स, when there is no potential difference of the collector, when the collector is at zero potential, do you see some current? Yes, we still see some current, and that is due to the incident frequency of orange greater than the threshold of the metal. यानी तुम्हें यहाँ पे करंट मिलेगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? इज दिस क्लियर? Everybody, it's not only I'm teaching Chiraga, please, the rest of the students also, please understand this thing very clearly. अभी देखो, उसी टाइम पे दूसरा स्टूडेंट भी परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स. उसी टाइम पे दूसरा स्टूडेंट भी परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट. उसने भी सेम सेटअप लिया, उतना ही डिस्चार्ज ट्यूब का लेंथ, वही टाइप का गैल्वेनोमीटर, वही रियोस्टैट, वही बैटरी सोर्स, स्टूडेंट्स वही लिया है, वही एमिटर लिया है, वही डिस्टेंस रखा है सोर्स का विंडो से. लेकिन सोर्स को क्या किया है? चेंज किया है, ग्रीन लाइट यूज किया उसने. उसने कौन सा लाइट यूज किया? ग्रीन लाइट. स्टूडेंट देखो, डिस्टेंस सेम है यानी इंटेंसिटी सेम है ना? लेकिन क्या किया? चेंज किया तुमने, फ्रीक्वेंसी चेंज किया. स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी चेंज किया है, इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट. इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट. व्हाट एग्जैक्टली? सो द करंट विल रिमेन कांस्टेंट. तो सारे केस में करंट विल रिमेन कांस्टेंट. यानी सेकंड केस के लिए भी स्टूडेंट्स, सेकंड केस के लिए भी जैसे मैंने ग्रीन लाइट को डाल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. व्हिच इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? दे विल कम आउट and they will reach over here and the circuit will complete. यानी will I get some current? Yes, ये ग्रीन लाइट के लिए भी होगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एक ही तुम्हें करंट मिलेगा. व्हाई? सर, आपने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया है. स्टूडेंट्स, फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. ये ध्यान रखना. फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड्स. आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करो, तुमने डिस्टेंस थोड़ी चेंज किया. कुछ समझ में आ रहा है? यानी सेकंड केस में भी तुम्हारा करंट उतना ही होगा, भले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, की ओपन है,
थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया है, थर्ड स्टूडेंट ने वायलेट लाइन लिया है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया, भले फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, सर्किट तो ओपन है, इंटेंसिटी चेंज नहीं किया है, तो क्या होगा, करंट, करंट उसके लिए भी कांस्टेंट होगा। यानी स्टूडेंट्स तीनों के लिए जब तुम ग्राफ देखोगे तो ग्राफ तुम्हारा जाएगा पैरेलल, पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भले तुमने यहाँ पे पोटेंशियल, सपोज अगर अभी नाउ नाउ इंसर्टिंग द की, मैंने यहाँ पे की को इंसर्ट किया स्टूडेंट्स, मैं इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, भले मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, लेकिन एक हाथ में क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड क्रिएट होगा। अभी क्या होगा, इवन द इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential is that potential at which even the electrons with maximum kinetic energy cannot reach the collector. और ये कौन सा है, ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे, ये तुम्हारा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो तुम्हारा 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 करंट इज कांस्टेंट इन दिस केस, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भले तुम पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, this is this minimum stopping potential at which no more current is increasing। देखो ना, करंट कांस्टेंट है, करंट बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंगली तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक का अलग होगा। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है, you can also call as this as accelerating potential स्टूडेंट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे तुम ये पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर तुम बोल सकते हो, लेकिन ये एक्सेलरेटिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारा देखो ग्राफ देखो पीछे किस तरफ जा रहा है, फिर सबका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तुम्हारे डिफरेंट डिस्टेंसेस में मिलेगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। For incident frequency very less students, the photo current is constant, but what about the stopping potential is less। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल which is given to the collector at which no photoelectric effect takes place in that case, then what happens to the photocurrent? The photocurrent is brought to zero. Even electrons with maximum kinetic energy cannot reach. Such a potential is called stopping potential. क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is this clear to all of you all? Hitansh, is it clear? Yes sir, it is clear. Okay, Chirag, what about you? What about rest of them? Nedev, are you there? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि बाउंसर ही आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Janvi, Nupur, Himanshu, are you there? Himanshu, Malav Joshi, what about you, Malav Joshi? Getting it? Himanshu, Malav Joshi, समझ में आ रहा है? Malav, हाँ सर। ओके, प्लीज ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, प्लीज ये वापस मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे इंटेंसिटी में, तो तुम करंट को कांस्टेंट रखो बस। फिर हमने क्या किया है, हमने कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज करा, यानी जैसे मैं रियोस्टेट को आगे पीछे करूंगा ये इफेक्ट होगा। सपोज अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज रियोस्टेट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सर आप इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम कर रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो कम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कम होगा। देखो ना, मैंने इसका पॉजिटिव यानी जीरो होगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं इस तरफ लूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाता हूँ क्या होगा, इवन इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पे आएगा, यानी फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, अगर तुम इसी को तुम अगर इक्वेशन के हिसाब से लोगे तो भी मिलता है स्टूडेंट्स, तो भी मिलता है। व्हाट एक्जैक्टली द इक्वेशन हम लेते हैं, व्हाट इक्वेशन आई एम ट्राइंग टू गो फॉर इट, लेट मी पुट फॉरवर्ड द इक्वेशन।
अब देखो यही हम ग्राफिकली हम इक्वेशन के हिसाब से बात कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स? इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्या हुआ हिमांशु? what are you speaking about? क्या टाइम टेबल? हाँ Himanshu, what are you speaking about? अच्छा वो वाला अभी ग्रुप में आया है क्या? ओके फाइन स्टूडेंट्स, h nu is equal to h nu 0 plus half m v max square। देखो h nu I minus nu 0 half m v max square, agreed। So what exactly your h nu I minus nu 0 is equal to half v max square we consider, kinetic energy we consider। यानी देखो तुम्हारा incident frequency is it greater than threshold? Yes। Now when I speak about your stopping potential, students, does your stopping potential depends on the frequency? Why not? Why not? If my incident frequency, students, if I happen to consider is greater than the threshold, what happens? You're kind of even. And what exactly stopping potential is? Stopping potential, students, is that minimum. Please, students, that's is that. ये देखो ये कौन सा side है? Negative x-axis. Is that minimum negative potential? Is that minimum negative potential given to the collector? At which even electrons, with maximum kinetic energy cannot reach. That is called stopping potential। यानी तुम्हारा EVS क्या हो जाएगा? half m v max square होगा students। तो instead of half v max square, students, can I run EVS? हाँ students, क्या मैं यहाँ पे इसको EVS लिख सकता हूँ students? क्या ये clear हुआ सबको? Is this clear? Stopping potential is that minimum potential, negative potential given to the collector, so that even electrons with maximum kinetic energy cannot reach। So EVS को can I put it as equal to half m v square? Why not? यहाँ पे मैं EVS डाल दिया। अभी देखो तुम्हारा frequency आ गया, देखो nu I minus nu 0 is equal to E by h into Vs। देखो nu I minus nu 0 is equal to E by h into Vs। क्या ये clear हुआ students? Is this clear to all of you all? Students, क्या ये clear हुआ? ये क्या बताता है? Relation of frequency with stopping potential। So this speaks about relation of frequency with stopping potential। यानी अगर तुम graphical representation करोगे ना students, frequency versus stopping potential का students, तो तुम्हारा graph will be a straight line and E by h becomes the slope of the graph। यानी जब भी तुम stopping potential के बारे में पढ़ो students, तो दो चीजें ध्यान में रखना कि यहाँ पे तुम्हारा क्या current saturation पे आ रहा है। हाँ सर, current saturation पे आ रहा है। क्यों saturation पे आ रहा है? क्यों सैचुरेशन पे आ रहा है? क्योंकि सर जब भी आपने पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर को आपने पॉजिटिव बना दिया, आपने पॉजिटिव, लेकिन जब भी तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो स्टूडेंट, ये देखो ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा रहा हूँ, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच, तो वो सारे न्यूट्रन में आ जाएंगे। ठीक है,
और फिर ग्रेजुअली सपोज इसका मैं पोटेंशियल कम करते रहूंगा, if I'm trying to decrease its potential, what happens? Electrons, those with maximum kinetic energy, they will only reach. लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर जब लोग इवन काइनेटिक एनर्जी विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रीच, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट फ्रीक्वेंसी। सो ये हुआ तुम्हारा डेफिनेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से। इसी को अगर मैंने इक्वेशन में डाल दिया, हमारा फ्रीक्वेंसी विद स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है। Difference in frequencies is equal to EH into VS. Is this clear, students, to all of you all? क्या ये clear हुआ? अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा। अभी हम दूसरा ग्राफ ले रहे थे, लास्ट ग्राफ, फिर एक वर्क फंक्शन के ऊपर होगा, that will be the end of the chapter. Friends, ये इंटेंसिटी यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंसिटी को नहीं ले रहा हूँ, और मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी को अभी मैं चेंज करूंगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा। What kind of a graph will get it? Listen carefully, students. इंटेंसिटी को अभी मैं चेंज करूंगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा। यानी हो क्या रहा है सर, आप ये पार्ट निकाल दोगे, आपका डायग्राम वैसे ही होगा। ये जो आप ग्राफिकल पहले बता रहे थे, अभी आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। वापस स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैं लूंगा फोटो करंट ही, एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर ही लूंगा। पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर लिया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड और उसको मैं कांस्टेंट रखूंगा। स्टूडेंट्स, पहले केस में मैंने 3 अलग कलर्स लिए थे, अभी मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में विबग्योर है। स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में विबग्योर है, विबग्योर में से सपोज मैंने सिर्फ ब्लू लाइट रखी है और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, मैं अभी दूसरा कलर ले ही नहीं रहा हूँ, आई एम टेकिंग ओनली ब्लू लाइट, लेकिन मैंने ब्लू लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये ब्लू लाइट स्ट्राइक हो रही है, लेकिन फर्स्ट केस में देखो इंटेंसिटी कम है। जैसे मैंने सोर्स को नजदीक रखा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे मैंने सोर्स को नजदीक रखा, इंटेंसिटी और बढ़ेगी, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा बाहर आएंगे, तो करंट बढ़ेगा। ओ यानी सर, पहले केस में आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ले रहे थे, तो वहां पे आपको करंट का एक सैचुरेशन मिला। समझ में आ रहा है? करंट का एक सैचुरेशन मिला, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग था। लेकिन सर अभी आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग इंटेंसिटी ले रहे हो। सर अगर मेरा इंटेंसिटी I1 डैश कम होगा तो मेरा फोटो करंट पहले केस में कम होगा, सेकेंड केस में शायद मेरा फोटो करंट ज्यादा हो सकता है, थर्ड केस में मेरा फोटो करंट और ज्यादा हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा फोटो करंट होगा फर्स्ट केस में, आई कैन कंसीडर दिस केस, ये सैचुरेशन है, ये तुम्हारा इंटेंसिटी इन द फर्स्ट केस। एग्रीड? आई कैन कंसीडर दिस मैनर। सेकेंड केस के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड केस के लिए तुम्हारा फोटो करंट आई कैन कंसीडर विल इंक्रीज फर्दर, ये उसका सैचुरेशन करंट है। थर्ड केस के लिए फोटो करंट और बढ़ेगा। ये देखो ना, इंटेंसिटी इन द फर्स्ट केस, इंटेंसिटी इन सेकंड केस, इंटेंसिटी इन द थर्ड केस। लुक एट द फोटो करंट स्टूडेंट्स, लुक एट द फोटो करंट इन ऑल द केसेस स्टूडेंट्स, लुक एट द फोटो करंट इन ऑल द केसेस। ये पहले केस में, ये सेकंड केस में, ये थर्ड केस में। सी द सैचुरेशन ऑफ द करंट आल्सो, सैचुरेशन पहले केस में, सैचुरेशन सेकंड केस में, सैचुरेशन थर्ड केस में। Intensity I3 dash is greater than intensity I2 dash is greater than intensity I1 dash. Intensity का मतलब क्या? Distance. Frequency blue light की है, यानी क्या करंट ज्यादा होगा? हाँ सर, करंट तीसरे केस में ज्यादा होगा क्योंकि बहुत नजदीक रखा है सोर्स को। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा? Why stopping potential सेम रहेगा?
It's because your difference between incident and threshold is kept constant. Incident frequency क्या है? Blue light. Hello students, incident frequency क्या है? Blue light. Threshold क्या है? Mu zero. ये difference हमेशा constant रहेगा. ये difference हमेशा constant रहेगा. ये difference हमेशा constant रहेगा. E by h भी क्या होगा? Constant है. Charge upon Planck's constant. तो stopping potential भी क्या होगा? Constant ही होगा ना तीनों केस में. जो कि प्रीवियस केस में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा. ओह, यानी स्टूडेंट्स यू शुड से दैट, उसका मतलब सर अगर हम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लेते हैं और उसको कांस्टेंट रखते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. ये इक्वेशन से इससे पता चलता है. दूसरी बात, और साइमल्टेनियसली अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. वैसे प्रीवियस केस में क्या था सर? प्रीवियस केस में आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे थे. यानी प्रीवियस केस में अगर मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ पे दिखा दूं स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस केस में मेरा ग्राफ सीधा पैरेलल जा रहा था. क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंसिटी कांस्टेंट था. लेकिन क्या मेरा फ्रीक्वेंसी अलग अलग था? हाँ सर, मेरा न्यू1, न्यू2, न्यू3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी थे. तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, इसलिए आपको 3 अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे थे. कुछ याद आ रहा है? 3 अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे थे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबका सेम था. क्या ये 2 ग्राफ्स क्लियर हुए स्टूडेंट्स? ये पहले केस के लिए न्यू1, न्यू2, न्यू3 keeping intensity constant, photoelectric current constant, but the stopping potentials are different. अगर मैंने न्यू1 is greater than न्यू2 is greater than न्यू3 लिया, the stopping potential, the first one is greater, second one is less, and third one is still less. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दोनों ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 ग्राफ. और कोई भी स्टूडेंट ये दोनों ग्राफ को समझने के लिए सिर्फ तुम अगर ये फॉर्मूला ध्यान में रख दो ना, तुम्हें पूरा आंसर पता चल जाएगा. यहाँ पे तुम्हारा स्लोप ऑफ द ग्राफ इज E by h. यहाँ पे तुम्हारा स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सिंपली h with respect to kinetic energy. फ्रेंड्स, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स एवरीबॉडी? What about rest of them? Itansh, is it clear to you, Itansh? Yes, sir. Okay. The rest they don't reply at all, so it's of no use asking them. है ना? सामने से पूछो तो, नहीं तो the other students they just type in and they say it. Students, अभी भी कोई confusion हो तो right now you unmute yourself and ask me, please. Don't just take it blindly. बहुत समझ के और अच्छी तरह से उसको देखो and try to think properly. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है तुम्हारा? इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो करंट चेंज नहीं होगा. ये ध्यान में रखना. अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तुम्हारा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं. लेकिन इंटेंसिटी चेंज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा, यानी फोटो करंट होगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? सी द वर्ड इटसेल्फ गिव्स यू. स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक ऐसा पोटेंशियल तुमने डेवलप कर दिया है कलेक्टर के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो भी इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं. यानी तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. देखो यहाँ पे देखो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो देखो 0 वोल्ट आ रहा है. स्टूडेंट्स, व्हाट इज x, y वैल्यू? ये देखो 0, ये y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, करंट की वैल्यू 0 लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव, -0. ये देखो मेरी x, y वैल्यू आ गई, यानी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया एट दैट. उसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच. अब ये तुम 2 ग्राफ को देखोगे तो दोनों ग्राफ, जब भी तुम्हारे सामने 2 ग्राफ है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अरे करंट बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है.
क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे पता चलेगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? देखो ना, डिफरेंस देखो, सबका कांस्टेंट रहेगा इन दैट केस, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है, इसलिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेलो स्टूडेंट्स, पहले वाले ने रेड कलर लिया, स्टूडेंट्स पहले वाले ने सपोज अगर वायलेट कलर लिया तो वो न्यू वायलेट कलर लेगा, तो उसका आंसर अलग आएगा ना, न्यू जीरो तो कांस्टेंट होगा। दूसरा अगर ग्रीन लाइट लेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी से सेपरेट करो तो अलग आंसर आएगा। कोई अगर 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 रेड लाइट लेता है तो उसका डिफरेंस अलग होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा ना। लेकिन क्या करंट बढ़ रहा है? नहीं सर, करंट नहीं बढ़ रहा है, वहां एक्सिस पे करंट है। करंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। Can I erase this, students? Students, can I erase this? Okay. Now, one graph I wanted to plot here, students. I want a graph of stopping potential with respect to incident frequency, and incident frequency is greater than threshold. चलो, कोई इसका ग्राफ बता सकता है? और मैंने कुछ दूसरा ग्राफ बनाने के लिए बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल गो फॉर डिफरेंट मेटल एमिटर्स, अलग मेटल्स। So listen carefully. Formula क्या होगा? Everybody listen carefully. Formula क्या होगा? So incident frequency is equal to threshold frequency plus kinetic energy maximum. Okay. हमें चाहिए stopping potential के हिसाब से। तो ये सबको पता है, since EVS is equal to half L Vmax square, तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये H nu y minus nu zero हो जाएगा, और इसकी जगह पे कहना put EVS. So what is nu y minus nu zero E by H into Vs? ग्राफ क्या होगा सर? ये तो इक्वेशन y is equal to mx plus c का ग्राफ है ना? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। यानी अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना दूं स्टूडेंट्स, मैं गेटिंग इट? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is equal to E by H into Vs plus threshold I'll consider. अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या होगा सर? ये तो डायरेक्ट वेरिएशन होगा। स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? E by H. What does E stands for? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. What does H stands for? What does H stands for? Planck's constant, 6.63 into 10 raised to minus 14 second. अभी मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना तो कैसे करोगे? X एक्सिस, Y एक्सिस। Y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा स्टूडेंट्स? स्टॉपिंग पोटेंशियल में लूंगा। यहाँ पे क्या होगा? मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं दो अलग मेटल्स के ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैंने दो अलग मेटल लिए, लेट मी टू गो फॉर टू डिफरेंट मेटल स्टूडेंट्स। एक का
ν1 है थ्रेशोल्ड और दूसरे का ν2 है। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स लेकिन एक का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ये मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ये मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये जो पहला मेटल है ना स्टूडेंट्स, ये मेटल है, ये मेटल 1 और ये मेटल 2, दो अलग मेटल लिए मैंने, दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। एक का फ्रीक्वेंसी मैंने, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर लिथियम एंड सोडियम। स्टूडेंट्स ये देखो ना, लिथियम एंड सोडियम, तो ऑफ कोर्स लिथियम का स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन कम होगा, है ना, लिथियम का वर्क फंक्शन कम होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। आई गेटिंग इट इन दिस केस? what about for sodium? उसका threshold frequency ज्यादा है। Now suppose if I'm going for incident light students, अगर मेरा incident light is greater, I'm going to go for incident light which is greater in this case. तो पहले केस में अगर मैं लेता हूँ incident light, तो कहने से if my incident light is equal to threshold, अगर nu I is equal to nu zero, stopping potential will be what? So stopping potential will be zero. And students ये पहला emitter के लिए मेरा ग्राफ यहाँ पे आएगा, if nu I is equal to nu zero, then stopping potential will be equal to zero. अगर मेरा nu I is greater than nu zero, देखो मेरा incident frequency is greater for the first emitter, what happens in this case? What happens in this case? What happens to stopping potential? Students, my stopping potential will go on increasing, क्योंकि देखो मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये भी तो बढ़ेगी, E by H is a slope, तो मेरा ग्राफ कैसे जा रहा है? Students, how exactly my graph will go? ये है तुम्हारा मेटल 1, ये देखो, ये तुम्हारा, अभी देखो ये तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यहाँ पे है। जब भी तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा स्टूडेंट्स, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा तो देखो ये बढ़ाओगे तो डिफरेंस बढ़ेगा ना, डिफरेंस बढ़ेगा तो वीएस और बढ़ेगा, ये पहला मेटल के लिए। अगर मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मेरा और बढ़ेगा। सेकंड के लिए क्या होगा सर? सेकंड का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, तो करस्पॉन्डिंगली व्हाट एग्जैक्टली, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से होगा। ये पहला केस के लिए और ये सेकंड मेटल के लिए, ये मेटल 2 के लिए। ये है तुम्हारा वर्क फंक्शन, दिस इज अ वर्क फंक्शन फॉर द फर्स्ट मेटल, वर्क फंक्शन फॉर द सेकंड मेटल। Since फर्स्ट मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, सेकंड के लिए वर्क फंक्शन विल बी ग्रेटर। डू दे हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स? व्हाई नॉट? दोनों का स्टॉपिंग, देखो इसका जैसे इसका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन मेटल्स आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ क्या दिखाता है? ये ग्राफ दिखाता है रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद स्टॉपिंग पोटेंशियल with two different metals. In the first case, metal 1, which has low work function, and metal 2, which has a slightly higher work function. The slope of the graph in both the cases, अगर तुम देखोगे, what is the slope of the graph? इसका slope of the graph लोगे या इसका slope of the graph लोगे, what exactly slope of the graph is? E by H, and that, sorry, H by E होगा students. Slope will be H by E क्योंकि VS versus है students. ध्यान से देखो, ये तुम्हारा H by E होगा, ये H by E होगा। क्यों H by E होगा? क्योंकि सर VS is proportional to nu y minus nu zero। इसको हम लोग ने x एक्सिस पे लिया है, इसको हमने y एक्सिस पे लिया है, तो ये जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। So H by E is the slope, H by E is the slope of the graph, H by E is the slope of the graph। H क्या है? 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। E क्या है? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombic answer, that is charge। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? This is clear to all of you all? Relation of incident frequency with respect to your stopping potential.
nu I minus nu 0. And the graph will be straight line graph we consider for different vectors. The best example of the students which already I told you is your photo cells, okay, that is your photo cells, you can see, which is deleted from your portion. एक लास्ट है स्टूडेंट्स कंसेप्ट de Broglie's hypothesis. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Can I erase it, students? Okay. Now we go for the last concept, students, for de Broglie's hypothesis. So ये जो de Broglie hypothesis है, ये एक्चुअली तुम पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. वहां पे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और शायद तुम्हें अगर पता होगा तो मैंने जब भी बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट जब भी मैंने बोला था ना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई, इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने बताया था बेस्ड ऑन टू de Broglie's hypothesis. So de Broglie hypothesis क्या है? ये एक hypothesis है. ये है क्या है? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने said it that electromagnetic wave. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि electromagnetic wave consists of uncharged particle called photon. है ना? Uncharged particle called photon. उसी का ही सिमेट्री, उसी रिलेटेड एक सिमेट्रिकल de Broglie ने क्या बोला? What exactly de Broglie said it? He said it that when waves consist of particles, तो de Broglie ने क्या बोला? Particle can be made to behave like wave. उसने उल्टा बोला, reverse. If wave consists of particles, then particles can also behave like wave. जैसे उसने बोला पार्टिकल्स है, तो उसने कौन सा पार्टिकल्स, उसके हाथ में कौन सा था, यानी इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन, तो उसने कौन सा लिया? इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया. सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन को उसने लिया. अभी इसको तुम वेव में कैसे कन्वर्ट करोगे? हेलो, इलेक्ट्रॉन को तुम वेव में कैसे बताओगे? अगर सपोज इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेट करोगे ना, then it will behave like a wave. Since when motion of electron is accelerated, it can behave like a wave. तभी जाके de Broglie ने अपना एक रिलेशन दे दिया स्टूडेंट्स, that is what is wavelength. What is de Broglie wavelength, students? De Broglie wavelength is given by the formula lambda is equal to h by p. ये है स्टूडेंट्स फॉर्मूला फॉर de Broglie wavelength. प्लीज अभी देखो दोनों, लुक एट द वेरिएबल्स. लैम्बडा किसके लिए जाता है? सिर्फ लैम्बडा जाता है वेव नेचर के लिए. ये जो सिंबल है ना स्टूडेंट्स, लैम्बडा, वो हमेशा हम वेव्स के लिए यूज करते हैं. और ये जो p है, ये मोमेंटम, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? पार्टिकल नेचर के लिए. यानी de Broglie ने क्या बोला कि वेव और पार्टिकल के बीच में एक इंटरलिंक है. लैम्बडा कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ h by p. दैट्स वेवलेंथ ऑफ de Broglie's wavelength. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. p क्या है? लीनियर मोमेंटम. अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को कैसे वेव में कन्वर्ट करेंगे? तो उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करो. कैसे एक्सेलरेट करोगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और सपोज मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेट होगा.
और पॉजिटिव पोटेंशियल पे बढ़ाऊंगा तो और मोशन एक्सेलरेट होगा, यानी आई नीड अ सुटेबल हाई पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इट टू एक्सेलरेट and we can make it to behave like a wave. So can I say the kinetic energy of the moving electrons, students? The kinetic energy of moving electrons, which is half m Vmax square, is equal to E into V. What does this V stands for? Yes, absolutely correct. Hitansh has proved the formula. Half m Vmax square is equal to A into V, students. What exactly does V stands for? This is standing for potential difference. Which potential difference? This is accelerating potential difference. तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है स्टूडेंट्स, तो क्या करो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो मोशन और एक्सेलरेट होगा। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनटू वी। व्हाट इज दिस एनर्जी ऑफ फोटोन आई कैन कंसीडर? ये जो एनर्जी है वो कौन सा है सर? ये जो एनर्जी है आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ, ये जो तुम्हारा वी मैक्स है, कैन आई पुट इट वी मैक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ये जो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है, कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ ईवी अपॉन व्हाट? M I can write on in this case. I can put in Vmax in this case. Lambda क्या है sir? Lambda is equal to h by p. H is equal to what? M into v. Mass into velocity I can consider. Is that clear, students? ये तुम्हारा lambda in terms of h upon m into v. Now can I get a relation between the two? Can I get a relation in this two? Why not? Now see, who has posted the answer? Yes, 1.228 upon potential difference. Absolutely correct, students. When you try to solve this, students, you'll get the answer as lambda is equal to 12.27 upon root of potential difference. और वो potential difference को हम कैसे लिखते हैं? V में लिखते हैं, और ये आंसर तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये वेवलेंथ किसके लिए है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये तुम्हारा होगा फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू गेट अ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ मींस कैन आई से इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ वेव। व्हाई नॉट? फ्रेंड्स हाफ m Vmax स्क्वायर इज इक्वल टू a into v भी कंसीडर। ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से जा रहा है। अगर सपोज अभी देखो, अगर तुम्हें प्रूव करना है तो तुम प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट्स। दोनों केस मल्टीप्लाई बाय m, अभी हम प्रूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान से देखना, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 is equal to m into a into v. ये potential difference है students, ये velocity है। What is m into v? Momentum. So can I say p square to m ev? What is p? What is p? H by lambda. So what is lambda? H upon 2 mev. What does H stands for? Planck's constant. इसकी वैल्यू अगर तुम्हें मालूम है, what does M stands for? Mass of electron. इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू मालूम है तुम्हें, V पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी तुम्हें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, 12.27 न्यूमरेटर में आएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear to all of you? This is what we call as the Broglie hypothesis. We consider that a particle can make it to behave like a wave, but provided its motion is accelerated. कौन सा पार्टिकल de Broglie ने लिया? इलेक्ट्रॉन। उसको एक्सेलरेट कैसे करोगे? जब भी उसका तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो मुझे शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगा। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब वेव फॉर्म में मिलेगा। Is this clear, students? All of you all? Okay. So today we wind up over here itself only. Next lecture will be continuing further, students. Next lecture अभी मैं इसके problems करने वाला students, और atoms, molecules and nuclei के भी problems करने वाला students. So kindly go through radioactivity के कुछ problems है। हम लोग previous questions को center में किए थे students.
शायद सीरीज लिमिट के क्वेश्चंस किए हुए थे, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, अगर ध्यान से मालूम है तो लाइमन बाल्मर, जब हमारा लाइव सेशंस चल रहे थे स्टूडेंट्स वहाँ पे, ओके, तो वहाँ पे हमने तो उसके जो पीछे के रेडियो एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम्स और इसके न्यूमेरिकल्स विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जैसे प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? Yeah, it's online only, students. This Wednesday it's online. It's not over there. It's online only. यहाँ पे ही होगा students. Okay. चलो. Okay. Bye.